یہ کبھی بھی پبلک موومنٹ نہیں چلا سکتے. پبلک موومنٹ تب چلتی ہے، عوام تب سڑکوں پہ آتی ہے جب عوام سمجھے کہ کوئی ان کے مفادات کی حفاظت کرنے آیا. یہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں حکمرانوں کی کرپشن بچانے کے لیے. اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ریولوشنریز بن گئے. ان کا تو صرف ایک چیز ہونی چاہیے کہ ان کو یا یہ پیسے واپس کریں یا یہ جیل میں ڈالیں. ان کے پاس صرف چوائس یہ ہوگی. جو بھی یہ کر لیں یہ ذہن میں ڈال لیں کہ این آر او نہیں ملنے لگا. اب اس کے علاوہ میں نے کب کہا کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تیار. ہم ہر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات کچھ کرتے ہیں، شروع کہیں کرتے ہیں، رائٹ دکھا کے لیفٹ مارتے ہیں، آ جاتے ہیں این آر او کے اوپر. کرپٹ اپوزیشن عوامی تحریک نہیں چلا سکتی. مخالفین کی رگ رگ سے واقف ہوں. بلیک میل ہوں گا نہ ہی این آر او دوں گا. مخالفین کرپشن بچانے کے لیے ایک ہوئے. جتنے مرضی جلسے کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اداروں میں مداخلت کرتا ہوں نہ ہی تیاری نہ ہونے کا بہانہ کیا. خواجہ آصف کو دبئی سے کیش آ رہا تھا. رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات کا کیس اے این ایف نے بنایا. مولانا فضل الرحمان کا کاروبار کچھ بھی نہیں، پراپرٹی اربوں کی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں انٹرویو. ایک سٹنگ آرمی چیف، اور اس کو پہلے آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ گورنمنٹ کو ریموو کریں، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ریموو کریں، اور پھر کہتے ہیں آرمی کو کہ اگر یہ آرمی چیف نہیں ریموو کرتا الیکٹڈ گورنمنٹ کو تو اس آرمی چیف کو خلاف کو کر دو. آپ بات کریں اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی جب یہ دی گئی آپ کو ترمیم، تو پھر فیصلہ کر لیں کہ کیا میں پتلا ہوں یا نہیں ہوں. اگر پتلا ہوں تو مجھے پھر مان جانا چاہیے تھا. مجھے تو کوئی ایویڈنس دیں کہ کس طرح فوج ہماری بیک کر رہی ہے. ایک طرف وہ مجھے کہتے ہیں میں فیشسٹ ہوں، دوسری طرف کہتے ہیں میں کٹ پتلی ہوں. کٹ پتلی نہیں، منتخب وزیر اعظم ہوں. ثبوت دیا جائے فوج کی جگہ ہماری پشت پناہی کر رہی ہے. کون سی جمہوریت میں سپہ سالار کو حکومت ہٹانے کا کہا جاتا ہے؟ فوج ریاستی ادارہ. نواز شریف نے براہ راست آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے سربراہ پر حملہ کیا. جس طرح بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے ویسے ہی اپوزیشن بھی کر رہی ہے. ڈس انفو لیب نے جو انکشافات کیے آج سے قبل کبھی نہیں ہوئے. وزیر اعظم عمران خان کا دنیا نیوز کو انٹرویو. جب حکومت سنبھالی صنعتیں بند تھیں. آج فیصل آباد میں کام کے لیے ورکرز نہیں مل رہے. ترسیلات زر ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے. کاروباری طبقے کا اعتماد دیکھنا ہے تو اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں. زندگی بھر کی جدوجہد کا تجربہ پاکستان کو بدلنے میں لگا دیا. وزیر اعظم ریاست مدینہ کے اصولوں پر پاکستان کو عظیم ملک بنانے کے لیے پرعزم. ہمارا واضح سٹانس ہے، قائد اعظم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. ہماری قوم چاہتی ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں، ان کی زمین لے چکی ہے، ان کے پاس جگہ نہیں ہیں، ان کے جو جگہ ہیں ادھر سیٹلمنٹس بن رہی ہیں. جب تک فلسطین سیٹسفائی نہیں ہوں گے ایک سیٹلمنٹ سے تو ہم نہیں ریکگنائز کر سکتے. صہیونی ریاست نے فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے، زمینوں پر قبضہ بھی کیا. اسرائیل کے حوالے سے موقف واضح. سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں. وزیر اعظم عمران خان. حکومت کے پاس 1 مہینے کی مدت ہے. اس کے بعد فوری طور پر قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کی تاریخ کا تعین اعلان کرے گی. اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راول پنڈی کی طرف کیا جائے. ضمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے. محمد علی دورانی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا جو نیشنل ڈائیلاگ کا فلسفہ تھا وہ بیان کیا، اور اس کے جواب میں میں نے کہا کہ یہ خارج از امکان ہے. گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز یکسر مسترد. جیل بھرو تحریک کا عندیہ. 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا اعلان. پی ڈی ایم ضمنی الیکشن لڑے گی. سینٹ کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا. جاتی امراء اجلاس میں بڑے فیصلے. تمام پارٹیوں کے استعفے پہنچ گئے. اتحاد پہلے سے زیادہ پرعزم. حکومت کے پاس صرف 1 ماہ باقی ہے. مولانا فضل الرحمان کی دیگر کے ساتھ میڈیا ٹاک.
जब बाज़ाब्ता PDM इस्तीफ़े देने का ऐलान करेगी, उससे एक दिन पहले भी अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है तो PDM जो है वो इस जाली हुकूमत के लिए रास्ता खुला नहीं छोड़ेगी। ना पीपल्स पार्टी ने, ना PMLN ने, ना PDM में शामिल किसी भी जमात ने अभी सेनेट के ऊपर कोई फैसला किया। उसको हमने डिफर कर दिया क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। राब्ते कर रहे हैं अभी आप लोग? राब्तों की तो कोशिश की जा रही है। मुश्तरका मैं आपको कंफर्म कर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से राब्तों की कोशिशें जारी, हुकूमत के लिए रास्ता खाली नहीं छोड़ेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार सामने ला सकते हैं। असल तवज्जो हुकूमत को घर भिजवाने पर मरकूज है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक अभी तक कोई फैसला नहीं किया। नून लीगी रहनुमा की मीडिया टॉक। मौलाना फजल रहमान को चाहिए कि पहले तो वो अपना बिस्मिल्लाह करें, अपने बेटे से कहें कि वो तो इस्तीफा दे। असल चीज ये है कि उन्होंने नैब को डराने का, इलेक्शन कमीशन को डराने का जिक्र किया है। अपनी ये हसरत ये भी पूरी कर लें। बिल्कुल आए, 10 दफा आए, हम इनको वेलकम करेंगे। आए, इस्लामाबाद आए। मौलाना फजल रहमान की बढ़कें इदारों को डराने की कोशिश। JUI सरबराह सबसे पहले अपने बेटे से इस्तीफा मांगे। PDM इस्लामाबाद आने का शौक पूरा कर ले, वेलकम करेंगे। शिबली फराज की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। सारा एक तमाशा है और ऐसी गीदड़ भपकियां लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इनको कह दिया वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और कोई शख्स मुझसे शर्त लगाए कि ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इस्तीफे अलमारियों में पड़े रहेंगे। लॉन्ग मार्च ये करेंगे। जब ये लॉन्ग मार्च करेंगे, वो जैसा ये करेंगे वैसा भरेंगे। सब लोग वो इकट्ठे हो रहे हैं जो नैब के राडार में। PDM लॉन्ग मार्च करेगी तो जैसा करेगी वैसा ही भरेगी। असेंबलियां छोड़ने की बातें गीदड़ भपकियां, इस्तीफे अलमारी में ही पड़े रह जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। पीपल्स पार्टी ने सुर्ख झंडी दिखा दी। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज परेशान हैं कि अवाम को मजीद कैसे बेवकूफ बनाएं। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। असेंबलियों से इस्तीफे देने का दावा करने वाले आज ज़िमनी इलेक्शन में ऐलान करने पे मजबूर हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ये गुड्डी गुड्डे का खेल ख़त्म हुआ। आपका बयानिया आज अपने हाथों ही जाती उम्रा में दफन हो गया। जाती उमरा इजलास, सियासी बेरोजगारों का इकट्ठ। ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान, ऑपोजिशन के कौलो फेल में तजाद का सबूत। मौलाना फजल रहमान ने अपना बयानिया खुद ही दफन कर दिया। फिरदौस आशिक आवान की तनकीद। इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान, खुदकुशी करार। CCPO लाहौर उमर शेख ओहदे से फारिग गुलाम महमूद डोगर को जिम्मेदारी मिल गई। वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद पुलिस में बड़ी तब्दीली। तबादले के नोटिफिकेशन पर 1 साल पुरानी तारीख दर्ज। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में तरनोल पनाहगाह और ईजी शिफा प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान को सहूलतों की फराहमी पर ब्रीफिंग। कप्तान ने खाना भी खाया। चेयरमैन नैब से आलमी इक्तिसादी फोरम की कंट्री पार्टनर इंस्टीट्यूट मशल पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव आमिर जहांगीर की मुलाकात। बदउनवानी के खिलाफ एहतसाब। ब्यूरो की कोशिशों को खराज तहसीन। करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब का ईमान। एहतसाब सबका की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। जावेद इकबाल की गुफ्तगू। कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटे के दौरान मजीद 71 अफराद जाँ बहक। 2463 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 4,82,178 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,773 तक पहुँच गई। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। धुएं के बादलों ने हर चीज छुपा ली। हदे निगाह इंतहाई कम। लाहौर, सियालकोट और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बंद। दीगर शहरात पर सफर करने वालों को भी मुश्किलात का सामना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद।
बुलेटिन के आगाज में जिक्र करेंगे वजीर आजम इमरान खान का, जिन्होंने कहा है कि अपोजिशन कभी भी अवामी तहरीक नहीं चला सकती क्योंकि ये अवाम के लिए खुद को बचाने निकले हैं। ब्लैकमेल होंगे, ना ही एनआरओ दिया जाएगा। तैयारी ना होने के बयान को गलत समझा गया। इमरान खान का कहना था कि वो किसी की कठपुतली नहीं, सबूत दिया जाए कि फौज किस जगह उनकी पुष्ट पनाही कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि कौन सी जमहूरियत में आर्मी चीफ को हुकूमत हटाने का कहा जाता है। यूरोपीय इदारे के इंकशाफात के मुताबिक अपोजिशन हुकूमत और फौज के खिलाफ भारत के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रही है। वजीर आजम इमरान खान दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में इंटरव्यू दे रहे थे। मैंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने उसको गलत लिया कि जी इमरान खान मेरी तैयारी नहीं थी। बिल्कुल ये नहीं कहा था। मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बताता हूँ मैंने क्या कहा था। जो बाइडेन इलेक्शन जीत गया, 2.5 महीने उसको गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स उसको प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, सही है, ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, ताकि जब वो ऑफिस संभालेगा 2.5 महीने के बाद तो उसकी जो सारी टीम है वो तैयार होगी। मैं ये कह रहा था इनसे बहुत बड़ी गलती होगी ना। पहले तो मुंह से कह रहे थे, इन्होंने वो लिख के दे दिया, दोनों पार्टीज ने, कि नैब के 34 क्लॉजेस बनो और एक एक क्लॉज में बचता कौन है। नवाज शरीफ किधर बचता है, वो मरियम किधर बचती है, वो जरदारी किधर बचता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी जब ये दी गई आपको तरमीम, तो फिर फैसला कर लें कि क्या मैं पुतला हूँ या नहीं हूँ। अगर पुतला हूँ तो मुझे फिर मान जाना चाहिए था। पहले तो फैसला कर लें। एक तरफ वो मुझे कहते हैं मैं फैसिस्ट हूँ, दूसरी तरफ कहते हैं मैं कठपुतली हूँ। मुझे तो कोई एविडेंस दें कि किस तरह फौज हमारी बैक कर रही है। इन्होंने हिट किया आर्मी चीफ को और ISI चीफ को, नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के। इतना बड़ा वो डरपोक आदमी है, यहाँ तो चुप करके बैठा रहा, वहाँ बाहर जाके इसने इनको अटैक किया। मेरा पहले पॉइंट ये है कि कौन सी दुनिया की जमहूरियत के अंदर एक सिटिंग आर्मी चीफ और उसको पहले आप उसे ये कहते हैं कि आप ये गवर्नमेंट को रिमूव करें, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव करें, और फिर कहते हैं आर्मी को कि अगर ये आर्मी चीफ नहीं रिमूव करता इलेक्टेड गवर्नमेंट को तो इस आर्मी चीफ को खिलाफ कूच कर दो। यहाँ एक बहुत बड़ी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, जो कि हिंदुस्तान वाज़े हो गया, यूरोपियन यूनियन की लैब ने एक्सपोज किया। उससे पता चलता है कि पूरी कैंपेन चली हुई है इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़। उस कैंपेन का हिस्सा बने हुए ये APDM वाले। ये कभी भी पब्लिक मूवमेंट नहीं चला सकते। पब्लिक मूवमेंट तब चलती है, अवाम तब सड़कों पे आती है जब अवाम समझे कि कोई उनके मफादात की हिफाजत करने आया। ये सड़कों पर निकल रहे हैं हुक्मरानों की करप्शन बचाने के लिए। इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू रेवोल्यूशनरीज बन गए। मौलाना फजल रहमान क्या कहता है जी, मैंने अपने आप को खुद ही सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। मेरे ये जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ है, आप कौन है पूछने वाले? हाँ, मैं जवाबदेही नहीं हूँ। इनका तो सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि इनको या ये पैसे वापस करें या ये जेल में जाए। इनके पास सिर्फ चॉइस ये होगी। ये मुझे तब तक ब्लैकमेल करते रहेंगे जब तक मैं इनको NRO ना दूँ। मैंने इनको NRO किसी सूरत नहीं देना। जो भी ये कर लें, ये ज़हन में डाल लें कि NRO नहीं मिलने लगा। अब उसके अलावा मैंने कब कहा कोई बात नहीं करने के लिए तैयार, हम हर बात करने के लिए तैयार हैं। ये बात कुछ करते हैं, शुरू कहीं करते हैं, राइट दिखा के लेफ्ट मारते हैं, आ जाते हैं NRO के ऊपर। डायलॉग की तो सारे हम बात कर रहे हैं। मैंने तो असेंबली में कहा हुआ है कि स्वाय NRO के कोई डायलॉग कर लो, लेकिन फौज आपसे कहती है इनसे बात करें या नहीं? यही बात है, यही बात है ना। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.